numericals on DDA line drawing algorithm. The question is, consider the line from 1 1 to 5 6. Use DDA line drawing algorithm to rasterize the line. प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले हमको algorithm के पूरे स्टेप्स पता होना ज़रूरी है. So step 1 is read end points of line x1 y1 and x2 y2. These are the x1 y1 and this is x2 y2. x1 is 1, y1 is 1, x2 is 5 and y2 is 6. Then step 2, we have to calculate values of del x and del y. So del x equal to absolute of x2 minus x1. So x2 is 5 and x1 is 1, so 5 minus 1 equal to 4. Absolute function is used to convert negative values into positive values. Means अगर हमको x2 minus x1 का रिजल्ट निगेटिव मिलता है तो एब्सोल्यूट फंक्शन उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा. अगेन सेम वे वी विल कैलकुलेट डेल वाई. सो एब्सोल्यूट ऑफ y2 minus y1. So y2 is 6 and y1 is 1. So 6 minus 1 that is 5. Again this is positive value, so no need to convert it into. Then step 3. In step 3 we have to compare values of del x and del y. If del x is greater than or equal to del y, then we have to assign value of del x to length. But if this condition falls, then we have to assign value of del y to length. So now let us check. Del x is 4 and del y is 5. 4 is greater than or equal to 5. So first condition 4 is greater than 5 is false. Second condition 4 equal to 5, that is also false. So we will jump to else loop and we will assign value of del y to length. So value of del y is 5. So length equals to 5. Now step 4 is we have to recalculate value of del x and the formula is x2 minus x1 divided by length. x2 minus x1 की वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगी from step number 2 and you can take it from step number 1 also. So it is x2 minus x1 is 4 and length is 5. So 4 divided 5 equals to 0.8. Then in step 5 we have to calculate value of del y. So del y y2 minus y1 divided by length. Again y2 minus y1 की value we will get it from step 2 or you can take it from step 1 also. So y2 minus y1 is 5. So 5 and length is 5. So 5 divided by 5 equal to 1. Then step 6 we have to actually calculate the values of x and y coordinate. So to calculate the value of x, the formula is x1 plus 0.5 into sine of del x. So x1 की वैल्यू हमको मिलेगी स्टेप 1 से, that is 1 plus 0.5 into sine of del x की वैल्यू हमको मिलेगी स्टेप नंबर 4 से. देन हमारा साइन फंक्शन बोलता है कि अगर पैरामीटर टू साइन फंक्शन इज ग्रेटर देन 0 देन इट विल रिटर्न 1 वैल्यू. इफ इट इज 0 देन इट विल रिटर्न 0 वैल्यू और if the parameter is less than 0 then it will return minus 1 value. So now 0.8 is greater than 0. So this complete sine function will return value 1. So after this calculation we will get x equal to 1.5. Then we will calculate y. So y equal to y1 plus 0.5 into sine of del y. So y1 we will get it from step number 1 plus 0.5 into sine of del y. Value of del y. Now value of del y is 1. So 1 is greater than 0. So this complete sine function will return value 1. So after calculation we will get value of y equals to 1.5. Now step 7 of algorithm is initialize I equals to 1. Then check the while loop while I is less than or equal to length. अभी I की वैल्यू 1 है और लेंथ की वैल्यू 5 है. So we will check 1 is less than or equal to 5. 1 is less than 5. कंडीशन इज ट्रू. अगर कंडीशन ट्रू है तो हम while लूप के अंदर जाते हैं और प्लॉट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं. सो प्लॉट इंटीजर ऑफ x कॉमा इंटीजर ऑफ y. सो x की वैल्यू है 1.5 एंड y की वैल्यू है 1.5.
तो इंटीजर फंक्शन यूज करने से क्या होगा, सिर्फ ये इंटीजर पार्ट कंसिडर करेगा एक्स और वाई का, एंड जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो रिमूव कर देगा। सो अब यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे प्लॉट 1 1, क्योंकि 1 इज द इंटीजर हियर एंड 1 इज द इंटीजर पार्ट हियर, सो प्लॉट 1 1। देन अभी हमको क्या करना है, एक टेबल बनाना है जिसमें हमारे एट्रीब्यूट्स रहेंगे आई, एक्स, वाई एंड प्लॉट ऑफ एक्स वाई। देन इनिशियली हमारी x की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 1.5 एंड y की वैल्यू कैलकुलेट की थी 1.5, लेकिन जब i इक्वल्स टू 1 है, तो i इक्वल्स टू 1 है, तब हमने क्या प्लॉट किया, प्लॉट 1 1। सो प्लॉट 1 1। अब हमारे एल्गोरिदम की नेक्स्ट स्टेप है, आफ्टर प्लॉट x की वैल्यू डेल x से इंक्रीमेंट करो एंड y की वैल्यू डेल y से इंक्रीमेंट करो। सो x की वैल्यू है अब हमारे पास 1.5 प्लस डेल एक्स की वैल्यू है हमारी 0.8, सो x इक्वल टू 2.3 एंड y की वैल्यू है 1.5 प्लस डेल y की वैल्यू है 1, सो y इक्वल टू 2.5। अभी फॉर i इक्वल्स टू 1 हमने प्लॉट की एंट्री कर दी है टेबल में। अब फॉर i इक्वल्स टू 1 हमको x एंड y के न्यू वैल्यूज एंट्री करने हैं, तो x इज 2.3 एंट्री कर दिया एंड y इक्वल्स टू 2.5 एंट्री कर दिया। देन हमारा एल्गोरिदम बोलता है कि i की वैल्यू फिर से x से इंक्रीमेंट करो, तो प्रीवियसली इट वाज 1, सो नाउ इट इज 2, i की वैल्यू अभी 2 हो गई। तो हमको फिर से व्हाइल लूप में जाना है। ये व्हाइल लूप की कंडीशन कब तक एग्जीक्यूट होगी, जब तक i की वैल्यू एक तो लेंथ के बराबर होगी एंड i की वैल्यू जब तक छोटी है लेंथ से, तब तक ये हमारा व्हाइल लूप चलते रहेगा और हमको हमेशा i की वैल्यू इंक्रीमेंट करके चेक करते जाना है। लेकिन जैसे ही i की वैल्यू लेंथ से बड़ी हो जाएगी, देन वी हैव टू गेट आउट ऑफ द कंडीशन, फॉल्स हो जाएगी एंड वी विल गेट आउट ऑफ द व्हाइल लूप। सो नाउ नेक्स्ट i इक्वल्स टू 2 के लिए अभी चेक करेंगे। i की वैल्यू है 2 एंड लेंथ की वैल्यू है 5, 2 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो प्लॉट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो फॉर इंटीजर ऑफ x एंड इंटीजर ऑफ y। x की वैल्यू न्यू वैल्यू हमको मिली है 2.3 एंड 2.5, 2.3 एंड 2.5 यहाँ पे। सो अगेन यहाँ पे हम सिर्फ इंटीजर पार्ट कंसिडर करेंगे, दैट इज प्लॉट 2 2, प्लॉट 2 2, ठीक है। देन फॉर i इक्वल्स टू 2 हम टेबल में एंट्री कर लेंगे प्लॉट 2 2 की। अभी x एंड y की वैल्यू न्यू वैल्यूज हमको कैलकुलेट करने हैं, सो x प्लस डेल एक्स। सो x की वैल्यू थी 2.3 प्लस डेल एक्स, तो हमको x की वैल्यू मिली 3.1, उसको i इक्वल्स टू 2 के लिए यहाँ पे एंट्री कर दीजिए। देन y इक्वल्स टू y प्लस डेल y, सो y की वैल्यू है 2.5, यहाँ हमने कैलकुलेट की थी, और डेल y की वैल्यू है 1, सो अभी हमको मिला 3.5। इसकी भी एंट्री हम i इक्वल्स टू 2 के लिए टेबल में कर देंगे, यहाँ पे कर दी। देन हमारा एल्गोरिदम बोलता है कि फिर से i की वैल्यू इंक्रीमेंट करो, तो नाउ इट इज i इक्वल टू 3। देन i की वैल्यू फिर से लेंथ के साथ चेक करो, से 3 इज लेस देन 5, फिर से कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर से प्लॉट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे फॉर वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो x की वैल्यू है 3.1 एंड y की वैल्यू है 3.5। तो इंटीजर फंक्शन होने की वजह से फिर से हम सिर्फ इंटीजर पार्ट कंसिडर करेंगे, तो इस बार हम प्लॉट करेंगे 3 3, प्लॉट 3 3। सो i इक्वल टू 3 के लिए फिर से टेबल में एंट्री कर देंगे 3 3। देन फिर से x और y की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे डेल x एंड डेल y से, तो अभी हमको x की न्यू वैल्यू मिली 3.9 एंड y की वैल्यू मिली 4.5, तो यहाँ पे हमने एंट्री कर दी है। अभी फिर से हमको i की वैल्यू x से इंक्रीमेंट करनी है, सो i इक्वल टू i प्लस 1, प्रीवियसली इट वॉज 3, तो अब ये बन जाएगी 4। सो फॉर i इक्वल्स टू 4 फिर से हमको व्हाइल लूप चेक करना है, सो i की वैल्यू है 4 एंड लेंथ की वैल्यू है 5, 4 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो प्लॉट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, x और y की वैल्यू लेना है, x की वैल्यू थी 3.9 एंड y की वैल्यू थी 4.5। तो अभी हम प्लॉट इंटीजर फंक्शन यूज करने की वजह से सिर्फ इंटीजर पोर्शन कंसिडर करेंगे, x में आएगा 3 एंड y में आएगा 4, तो हम प्लॉट करेंगे 3 4, यहाँ पे प्लॉट किया 3 4। सो i इक्वल टू 4 के लिए हम एंट्री कर देंगे टेबल में 3 4 की। देन फिर से x की वैल्यू डेल x से इंक्रीमेंट करना है, सो x की वैल्यू थी 3.9, उसमें हमने डेल x ऐड कर दिया, तो इट इज नाउ 4.7 एंट्री कर दीजिए x की वैल्यू फॉर i इक्वल्स टू 4 के लिए।
देन y की वैल्यू फिर से del y से इंक्रीमेंट करेंगे, तो नाउ इट इज 5.5। तो इसकी भी एंट्री हमने टेबल में कर दी। फॉर i इक्वल्स टू 4, y इज 5.5। देन एज पर द अल्गोरिदम फिर से i की वैल्यू इंक्रीमेंट करना है। प्रीवियसली इट वाज 4, तो अब ये बन जाएगी 5। सो i इक्वल टू 5। फिर से while लूप में जाएंगे और चेक करेंगे कि 5 इज लेस देन 5। पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, लेकिन 5 इक्वल टू 5 ये सेकेंड कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो फिर से प्लॉट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे x एंड y के लिए। तो अभी हमको मिलेगी इंटीजर ऑफ 4.7 एंड इंटीजर ऑफ y दैट इज 5.5। फिर से इंटीजर फंक्शन यूज कर रहे हैं, इसलिए इंटीजर पोर्शन कंसिडर करेंगे 4 एंड 5। तो हम प्लॉट करेंगे 4, 5। अब इस प्लॉट की एंट्री फॉर i इक्वल्स टू 5 हम टेबल में कर देंगे 4, 5। देन फिर से x एंड y की वैल्यू हमको इंक्रीमेंट करनी है बाय डेल x एंड डेल y। तो डेल x की वैल्यू x में ऐड कर दी एंड y की वैल्यू डेल y की वैल्यू y में ऐड कर दी। तो अभी हमको न्यू x की वैल्यू मिली 5.5 एंड y की वैल्यू मिली 6.5। तो इस तरह से हमने टेबल में i इक्वल टू 5 के लिए x और y की वैल्यू भी एंट्री कर दी। सो नाउ फिर से हमको i की वैल्यू x से इंक्रीमेंट करनी है। पहले ये 5 थी, अब बन जाएगी x से इंक्रीमेंट करने के बाद 6। सो फिर से while कंडीशन चेक करेंगे। while i इज लेस देन और इक्वल टू लेंथ। तो अभी i की वैल्यू है 6 एंड लेंथ की वैल्यू है 5। 6 इज लेस देन 5, पहली कंडीशन फॉल्स। 6 इक्वल टू 5, दूसरी भी कंडीशन फॉल्स। अभी हमारा while लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम लूप के बाहर निकलेंगे और हम स्टेप नंबर 7 के अंदर थे अब तक। नाउ वी विल एग्जीक्यूट स्टेप नंबर 8, इसलिए मैंने लिखा है गो टू स्टेप 8। और हमारा स्टेप 8 कौन सा है? एंड द अल्गोरिदम। सो इस तरह से हमने पूरे एंट्रीज टेबल में कर दिए हैं। तो हमको क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्लॉट द लाइन फ्रॉम 1, 1 to 5, 6। लेकिन अब अगर हमारा i इक्वल टू 6 के लिए अगर हम कैलकुलेट करते थे, तो हमारा नेक्स्ट प्लॉट कौन सा आता था? 5, 6। और वही हमको एंड पॉइंट करके हमारे क्वेश्चन में दिया है x2, y2, x1, y1 इज 1, 1 एंड x2, y2 इज 5, 6। तो अभी ये पूरे इंटरमीडिएट पिक्सल, दो पॉइंट के बीच में जितने भी इंटरमीडिएट पिक्सल्स है वो हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए हैं। नाउ अभी हमको स्क्रीन बनानी पड़ेगी और स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू रोज एंड कॉलम्स। तो हमारी मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू है 6। तो हमारा जो स्क्रीन है यहाँ से स्टार्ट करेंगे बॉटम लेफ्ट साइड से, 0 से लेकर, दिस इज द x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज द y कोऑर्डिनेट। 0 से लेकर जाएंगे हम, मैक्सिमम वैल्यू है 6, तो हम 6, 7 तक यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। देन यहाँ 0 से लेकर फिर से हम 6, 7 तक ड्रॉ कर लेंगे। देन फर्स्ट पिक्सल इज 1, 1। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये पिक्सल मेरा हाईलाइट होगा। देन 2, 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दिस पिक्सल विल बी हाईलाइटेड। 3, 3, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, दिस पिक्सल विल बी हाईलाइटेड। थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम, थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम, दिस पिक्सल विल बी हाईलाइटेड। फोर्थ रो एंड फिफ्थ कॉलम, फोर्थ रो एंड फिफ्थ कॉलम, दिस पिक्सल विल बी हाईलाइटेड। एंड लास्ट वन इज 5, 6, सो फिफ्थ रो एंड सिक्स्थ कॉलम। तो ये पिक्सल को हमने हाईलाइट कर लिया। अब हमारी लाइन इस तरह से ड्रॉ होने वाली है, लेकिन अगर हम इन पिक्सल्स को ज्वाइन करते हैं तो हमको थोड़ी स्मूथ लाइन नहीं मिल रही है, थोड़ी सी जिगजैग टाइप की लाइन मिलेगी। ये क्यों मिल रही है? क्योंकि हम अपने ओरिजिनल पॉइंट से डाइवर्ट हो रहे हैं। क्यों डाइवर्ट हो रहे हैं? क्योंकि हमको ये वैल्यू मिलती है पॉइंट में, लेकिन हम वो उसका फ्रैक्शनल पार्ट डिस्कार्ड करके सिर्फ ओरिजिनल उसका इंटीजर पार्ट कंसिडर करते हैं। इसलिए हमारी लाइन जो है अपने ओरिजिनल पॉइंट से थोड़ा डाइवर्ट हो रही है और हमको थोड़ी सी जिगजैग टाइप की लाइन मिलती है। सो दिस इज हाउ you rasterize the line from 1, 1 to 5, 6, 1, 1 to 5, 6.